Welcome back, everyone. So today we will move ahead with the second video of haloalkanes and haloarenes, and I'll move on with the next topic, which I'm going to teach right now. This will be Finkelstein reaction. Finkelstein reaction. This is Finkelstein reaction. Again, इसका और एक नाम है. We have another name for this. This is called iodine exchange reaction. So if you remember, this video, or this is a series, or this is a continuation of the series of formation of haloalkanes from different sorts of compounds. So there is one more type of reaction which is called Finkelstein reaction. This becomes an important reaction, and there are many reasons for that. I'll tell you the first reason, that is, this is called a name reaction. Now, if you guys are not accustomed with what a name reaction is, let me tell you. These are reactions named after the scientists who founded or performed these reactions for the first time. And again, as soon as there is a name associated with someone or some scientist, it becomes an important part of the curriculum. So we will move ahead with this reaction. Over here, this is also known as iodine exchange reaction, and there is a specific reason. And if you might be thinking कि क्यों भैया Finkelstein reaction, why is there a specific name, or there is a specific person who has achieved this reaction, I'll give you all the reasons for that. So for this reaction, if you see, there is a word written which is iodine exchange. I have written a word over here, that is iodine exchange reaction, which means there must be something that is exchanged with iodine. So we will try and move ahead with the reaction. We have a compound which is RX. RX is an alkyl halide. We already have an alkyl halide. We are trying to prepare a specific type of alkyl halide, that is an alkyl iodide. This is an alkyl iodide. And now you might be thinking, why do we need to prepare this certain kind of compound? See, that is totally upon you. देखो, अगर आपको need है कि आपको कोई आयोडाइड ही चाहिए, देन आपको तो क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड से चलने वाला नहीं है. आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट. तो you must be asking, why do we need a specific reaction, and why not directly prepare this kind of a product? See, there are many reasons for that. I'll give you the basic and the most important reason. See, this iodine is a very big compound. If you think about it, it is a very big compound. Like the size of this iodine is very big. So the reactivity is already hindered, because एक बार iodine negative format में आ गया ना, that becomes very much stable. उसको बहुत stability मिल जाता है. तो अच्छा, this stability is also used for cancer treatment in today's world. Thyroid gland को iodine दिया जाता है just to treat many types of cancer. But that is totally not important right now. The thing is कि iodine as a negative ion is very stable, so it won't want to react, और in general भी वो try नहीं करता react करने का with any alkene. So what we do is, we take a haloalkane which is obviously पहले से prepared है. We take a sodium iodide solution, we dip it in dry acetone. Dry acetone is the what do we say? Dry acetone is the medium in which this reaction will take place, giving us a sodium alkyl iodide and a sodium halide. So do we need to give an example? If you want, I can obviously give you an example, but is that significant? No. But is this reaction significant? Yes, obviously this reaction is significant, because आपसे ये name reaction पूछ दे सकता है कि write a balanced reaction for Finkelstein, giving example of Finkelstein reaction. So you can give any example. I'll give you the simplest reaction I can think of right now. So आपको ऑलरेडी आइडिया लग चुका होगा कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. ऑब्वियसली द प्रोडक्ट विल बी इथाइल आयोडाइड. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज प्रिटी मच एविडेंट, राइट? तो एंड सोडियम क्लोराइड विल बी द अदर थिंग. यहाँ पे हो कुछ नहीं रहा. अगर मैं सिंपल से बताऊँ ना, तो दोस्त बदल लिए जा रहे हैं. अगर एल्काइल ग्रुप का दोस्त X था एंड सोडियम ग्रुप का जो दोस्त था I था, तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे का दोस्त बदल लिया. ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया. तो दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड. I hope this much you can understand. This is very easy. Iodide exchange या फिर iodine exchange को बोलते हैं इस reaction का.
इसको ऑल्सो हलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी बोला जाता है क्योंकि हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है. Again, this is a very important reaction because this is a name reaction. Moving on ahead, we have another name reaction which is again name reaction है तो important होगा. There is a thumb rule. I'll tell you about this. जितने भी name reaction है ना, there is a specific like reason कि उनका name reaction उनको याद रखना ज़रूरी पड़ जाता है. तो that is something you cannot escape. Schwarz reaction. Pardon me with my spelling if I'm wrong. बट द थिंग इज़ कि मैं कॉन्सेप्ट सही बताऊंगा आपको. रेस्ट अश्योर्ड फॉर दैट. सो मूविंग अहेड, Schwarz reaction is again a very important reaction. I mean for all the good reasons in fact, क्योंकि ये only for alkyl fluoride formation, alkyl fluoride के formation में ही help करता है ये. Why is that? I'll give you the reasons for this. तो आपको इसके लिए कुछ याद रखने की जो ज़रूरत है, दैट इज़ द रिएजेंट्स, कि आप क्या रिएजेंट लोगे तो आपको फ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा. तो I'll give you the examples. AgF, I'll give you many examples for that. Hg2F2 एग्ज़ाम में या फिर क्वेश्चन में कुछ भी यूज़ कर सकता है. आई होप यू विल रिमेंबर, यू विल ट्राई टू रिमेंबर, बिकॉज ऑब्वियसली आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपके एग्ज़ाम से, तो यू रिमेंबर दैट. सो मूविंग अहेड, Schwarz reaction is used for the preparation of alkyl fluoride. Why is that? भैया देखो, फ्लोराइड अगर आपको इन जनरल में बताऊँ ना, फ्लोराइड इज़ अ स्मॉल एनायन विच इज़ स्टेबल. अच्छा, फ्लोराइड इन ऑर्डर टू गेट दिस नेगेटिव चार्ज, इट इज़ वेरी 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 अग्रेसिव इन नेचर. अगर आप किसी भी वे से उसको इलेक्ट्रॉन दोगे ना, तो इट विल ट्राई टू ग्रैब होल्ड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन एज फास्ट एज इवन यू कैन थिंक. तो इतना जल्दी होता है. Obviously, if something happens very fast, if some train moves on a track very fast, it will create high amount of friction and high amount of heat. But यहाँ पे तो वो train track metal से बना नहीं. Obviously, you're trying to do it in a beaker or whatever test tube. That test tube will blast due to the sudden raise of temperature that you will see. So you do not want that. You do not want something to explode while you're performing it, right? So you're not trying to prepare a bomb right now. तो ये इसी रीज़न से इस रिएक्शन को बहुत केयरफुली करना पड़ता है. दिस इज़ द मेन रीज़न, बिकॉज कि हमको ये रिएक्शन बहुत केयरफुली करना पड़ता है. तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली फ्लोराइड का फॉर्मेशन कभी भी एल्केन ग्रुप से नहीं करते. यूजुअली वी ऑलवेज ट्राई टू टेक अनदर सॉर्ट ऑफ हेलो एल्केन एंड ट्राई टू मिक्स इट विथ सम काइंड ऑफ फ्लोराइड विच इज़ यूजुअली इनऑर्गेनिक फ्लोराइड. दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक फ्लोराइड. These are all inorganic fluorides. There is also a reason कि inorganic fluorides लोगे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के संग रिएक्ट कराओगे तो रिएक्शन होगा भी, एंड फ्लोरीन डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है कार्बन के ग्रुप पे, तो इट विल नॉट हार्म और इट विल नॉट बर्स्ट ओपन. तो दैट इज़ द थिंग. सो गिव मी एन एग्जांपल अगेन, दैट इज़ द मेन कंसर्न, राइट. तो एग्जांपल देता हूँ मैं. एग्जांपल इज टेक फॉर एग्जांपल CH3Br लिया आपने दिया AgF. आपके AgF देते ही आपको पता चलेगा कि अगेन सेम चीज़ होना है भैया, दोस्त बदल लेना है इनको. तो CH3F का फॉर्मेशन यहाँ हो गया एंड यू हैव योर AgBr. आपका कंपाउंड फॉर्मेशन हो चुका है. तो दैट इज़ द थिंग यू हैव टू लर्न ओवर हियर. तो देखो अगेन, नेम रिएक्शंस आर इम्पॉर्टेंट. आई डू नॉट नीड टू रिपीट दैट, आई होप, बट I think you will remember. You are that mature right now. Again, moving ahead. Again comes a very important reaction because you guessed it right. Name reaction आ रहा है. This name reaction is called Sand-Mears reaction. अगर आपको लग रहा है कि why are these many reactions over here, what is the purpose of these reactions, everybody thinks those kinds of things. देखो सीधा सा बात है, यहाँ पे आपको एक चीज़ रिमेंबर रखना है या फिर एक चीज़ याद रखना है, that is you are trying to prepare some sort of compound. What is that compound? That may be a haloalkane, that may be a haloarine. Okay, you are trying to prepare a haloalkane or a haloarine. तो आप all possibilities देखोगे, राइट. अगर आपको मैंने एक मैथ्स का क्वेश्चन दिया
कि आप 2+3 करो, तो ऑब्वियसली आप 2+3 5 बोलोगे, बट देर आर मैनी वेज टू डू दैट. यू कैन काउंट दैट ऑन फिंगर्स, यू कैन काउंट दैट ऑन द जॉइंट्स, लाइक जो रिंग्स है ऑन योर फिंगर. यू कैन लाइक डू नॉर्मल काउंटिंग, यू कैन डू दैट ऑन अ नंबर लाइन. तो आपको देर आर एम्पल नंबर ऑफ वेज, राइट. तो दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर ओवर हियर. कौन सा जल्दी होता है, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है, किस में मेरे को जो बाई प्रोडक्ट्स है दैट कैन बी यूज्ड, रीयूज्ड और लाइक डिज़ायरेबल वो भी है, मेरे काम के हो जाए. तो दैट इज़ हाउ द थिंग्स हैव बीन प्रोसीडेड एंड द क्वेस्ट हैज़ बीन गोइंग ऑन लाइक दिस. तो वी विल मूव अहेड विथ सैंडमियर्स रिएक्शन. इसके लिए आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, दैट इज़ डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन. उसको मैं आपको बताता हूँ. उसके लिए हमको सबसे पहले समझना है डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन. हमको डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन समझना है. व्हाट इज़ डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन? यू टेक अ aniline. What is this aniline? This is a benzene ring attached with NH2 group. ठीक है, this is a aniline. अब aniline को आपको रिएक्ट कराना है भैया, NaNO2 प्लस HCl देना है आपको with a certain condition, that is 273 to 278 केल्विन, जिसको सिंपल भाषा में लोग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस याद रखते हैं. Okay, once you do this, you will get a compound which is very important over here, which is very very important, which is a diazo compound या फिर azo compound जिसको हम लोग बोलते हैं, which is N2 plus and X minus. This is X minus. This is called diazotization reaction. इसका नाम होता है भैया डाइazonium halide. इस कंपाउंड का नाम होता है, दिस इज़ अ जनरलाइज्ड कंपाउंड. आप डाइazonium क्लोराइड ज़्यादातर सुनोगे यूजुअली. डाइazonium halide, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. दिस रिएक्शन यू हैव टू लर्न एज इट इज़ गिवन राइट नाउ. ये आप जितना अच्छे से याद रखोगे दैट विल डिपेंड अब आप पे, एंड उतना ही आपका बेटर होगा फर्दर आगे के लिए. ओके, मूविंग ऑन. आपको इसके संग देना है भैया Cu2X2. आपको देना है कॉपर हलाइड का पाउडर. ठीक है, कॉपर हलाइड आप दोगे, जैसे ही कॉपर हलाइड दोगे, द रिएक्शन विल प्रोसीड एंड गिव यू अ हेलोअरीन. There you get your haloarine with N2 differentiated, because over here जो यहाँ पे N2 का ग्रुप आपको दिख रहा होगा, this is very much chemically reactive and this will leave and give you the product that you need. तो ये जो है, this part of the reaction is called, this part is called Sandmeyer's reaction. Sandmeyer's reaction. I hope you understand that. And this part is called, यहाँ से यहाँ तक, is called diazotization reaction. Diazotization reaction. I hope you understood that and you will try to remember that. Diazotization reaction. I'll give you an example too. Wait. आई होप डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट. डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन का बहुत जगह सिग्निफिकेंस है. डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन के बाद यू हैव टू सी कि आप सैंडमियर्स रिएक्शन देखो. सैंडमियर्स रिएक्शन इज टेकिंग डाइazonium halide and forming a haloarine. Again, this is a haloarine. This is a haloarine. What is a haloarine? Halogen attached to an aryl group is called a haloarine. I'll give you an example. Revision भी होता रहेगा and अच्छा भी लगेगा आपको अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. The more you solve, the more confident you feel over here. So I give you a compound. HCl के संग आपने रिएक्ट करा है. Get a certain compound A. Then you react this compound with sodium iodide in the presence of dry acetone. Then you get a compound B. Again, A के संग आपने रिएक्शन कराया AgF, silver fluoride. You get a compound C. And then ये जो आपने एक रिएक्शन यहाँ से कराना है
एक रिएजेंट आप दोगे E to form an alcohol over here. अल्कोहल टाइप का कंपाउंड बनाओगे आप जिसका नाम है D, एंड देन D से आपको SOCl2 देना है ताकि अगेन आपका कंपाउंड A बन जाए. तो आई होप यू विल ट्राई दिस कंपाउंड. आई वुड हैव वांटेड कि आप ये खुद से सॉल्व करो. होगा. आई होप कि ये वाला आप खुद से ट्राई करो. वंस यू हैव डन दिस, I hope you have tried this. Let me move ahead and try to give the solution for this question. Okay, the first reaction, if I remember, A na. Okay, I give you this reaction. This was it, and I reacted it with HCl. Again, we know how this will go ahead. H plus मिलेगा आपको and आपको मिलेगा Cl minus. Okay, now this double bond will again break because आपको एक प्लस माइनस मिला है. then again you need to have a plus minus compound. एक माइनस एक प्लस आपने तोड़ दिया. यहाँ पे you do not have to think much about the plus minus कि कैसे वो टूटेगा because there is no such thing कि आपको 2 डिग्री 3 डिग्री या फिर रीअरेंजमेंट या फिर इन जनरल प्लस आई माइनस आई इफेक्ट सोच के आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि दिस इज अ सिमेट्रिकल कंपाउंड. ओके, दैट इज नॉट द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. We will put this H to the negative thing and Cl to the positive thing because that is what happens. Positive attracts the negative things and the negative things attract the positive things, whatever be it. So अब you can see then there will be H attached over here and there will be a Cl attached over here. So this is the first product that I'd be hoping you have got, and if you can name this product I'll be better happy. So this will be 2 chloro butane. I hope you guys have written this answer and you could name this compound whatever. Now we are reacting this A with a certain compound which is called sodium iodide, and in the presence of dry acetone. देखो, I'll give you a very important hint over here, and it is not a hint, I'll give you a tip which is the one of the most important tips that I can give you or you will learn eventually if you don't accept it right now. The more you write down the things na reaction के time पे, the more you write down the things the better it will be for you. Like अभी जैसे आपको दिखा यहाँ पे सोडियम आयोडाइड एंड ड्राई एसीटोन, आपको क्या याद रखना, दिस इज अ पार्ट ऑफ फिंकलस्टाइन रिएक्शन. हाउ डू वी रिमेंबर फिंकलस्टाइन रिएक्शन? देखो, मैंने जो अपने टाइम पे याद करने की कोशिश की थी, दैट आई गेव एन एफर्ट, आई ट्राई टू रिमेंबर इट बाई फिंकल नाई. फिंकल एक नाई है. हाउ कैन यू रिमेंबर? फिंकल एक नाई है. नाई क्या है? नाई इज सोडियम आयोडाइड. यू वेर एवर यू फाइंड सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन दैट बिकम्स अ फिंकलस्टाइन रिएक्शन. तो ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? दिस इज अ फिंकलस्टाइन रिएक्शन. आपको ऐसे एकदम संग क्लिक करना चाहिए. जस्ट द वे इट क्लिक मी, यू हैव टू लाइक रेजोनेट विथ मी. सो अब यहाँ पे फिंकलस्टाइन रिएक्शन, अगेन वी नो दैट यहाँ पे क्या होने वाला, भैया दोस्त बदल लेने हैं. ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा. तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट अ न्यू कंपाउंड विच विल लुक लाइक दिस. आई होप दिस इज क्लियर. अब अगर आप पूछोगे कि भैया यहाँ पे आपने एच बनाया था, वाई डिड यू नॉट ड्रॉ दिस? बिकॉज एच इज प्रिटी मच एविडेंट. यू गाइज मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ. राइट नाउ you must be understanding that H is not very significant. You do not have to give line diagrams में, you do not need that. But whatever be it, so this is the compound which we were looking for. This is B, and now we are trying to achieve A से new compound that is C, right? And we have given AgF. Again AgF देखते ही मुझे क्या आ गया याद कि भैया ये तो है स्वार्ट्ज रिएक्शन. स्वार्ट्ज रिएक्शन. अब स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता था भैया? अगेन फ्रेंड्स को एक्सचेंज करना है भैया. आप इसको यहाँ लेके जाओ एंड इसको यहाँ लेके आओ, तो दैट विल गिव यू अ कंपाउंड विच इज समवॉट लाइक, ओके दिस इज नॉट द कलर, this will look like this fluoride. So if you can name this compound, obviously
this will be 2-fluorobutane, this will be 2-iodobutane, whatever. तो that is not important right now. important क्या है जो वो मैं बताता चलूँगा आपको, hardly matters. तो ये हो गया भैया, AgF से आपने रिएक्ट करा दे, यू हैव गॉट अ कंपाउंड C. नाइस. देन अब आपको इस कंपाउंड को रिएक्ट कराना है विथ सर्टेन सब्सटेंसेस E टू गिव एस एन अल्कोहल. मुझे चाहिए एक अल्कोहल. अब देखो भैया, कॉमन सेंस से क्या पता चलता है, अल्कोहल होगा तो इट विल हैव एन OH ग्रुप. अब भैया OH ग्रुप आप कैसे ऐड करोगे? देखो, देर आर एम्पल नंबर ऑफ मेथड्स टू ऐड अल्कोहल, लाइक OH को ऐड करने का. आई कैन गिव यू मैनी मेथड्स, बट अगर आपने लाइक क्लास 11 ठीक से पढ़ा होगा तो आई कैन गिव यू सर्टेन एग्जाम्पल्स. देर इज HBO, हाइड्रोजन बोरो ऑक्सीडेशन या फिर बोलते हैं इसको. देर इज OMDN, oxymercuration, demercuration, oxymercuration, demercuration, hydroboro oxidation, and there is H3O का एडिशन. H3O कैसा होता है भैया? H2O with few drops of HgSO4. अरे यार, H2SO4 ना, H2SO4. तो देर आर मैनी मेथड्स. तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. तो आपको मिलेगा किसी को एक सर्टेन कंपाउंड. लेट अस ट्राई टू अचीव दैट. ऐसा नहीं है कि मैं आई स्किप दैट. आपके पास ऐसा कंपाउंड है, आपने लिया भैया वाटर, एक्टिवेटेड वाटर, विच इज़ लाइक दिस. वाटर है, आपने एक्टिवेटेड वाटर जैसे ही लेना है ना, आपको क्या मिलने वाला है भैया? H+ एंड OH-. ये वाला आप कौन सा मेथड बता रहे हो भैया? आई विल गिव यू दिस मेथड. ये वाला मेथड आई एम ट्राइंग टू गिव यू. HBO एंड OMDM में अलग अलग तरीके से होता है. आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू दैट, वट एवर बेट. तो H+ एंड O-. अगेन भैया OH-. तो अगेन प्लस माइनस का खेल हुआ है, तो आपको एक जगह माइनस देना पड़ेगा और एक जगह प्लस देना पड़ेगा. अगेन प्लस वाले माइनस की तरफ, माइनस वाला प्लस की तरफ, वट एवर. तो इससे आपको किस टाइप का कंपाउंड मिलने वाला है? अगर आप देखो तो कुछ ऐसा, अगर आप प्लस में माइनस जोड़ा आपने तो OH यहाँ जुड़ गया एंड H यहाँ पे जुड़ गया. अगेन H इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, तो इफ़ यू डोंट ड्रॉ H दैट वोंट मैटर मच. तो यू हैव गॉट अ सर्टेन कंपाउंड विच इज़ लुकिंग लाइक दिस लुक्स नाइस. एंड देखो, अगर आपको डाउट हुआ कि भैया आपने उस तरीके से क्यों तोड़ा, आपने OH इधर क्यों नहीं जोड़ा, आपने ऐसा क्यों किया, तो देखो आपको क्वेश्चंस के भी तो रिक्वायरमेंट समझने होंगे ना. देखो, यू हैव ट्राइड एंड अचीव्ड थिंग विच इज़ A. आपने Cl यहाँ जोड़ा है, राइट? Cl यहाँ जोड़ा है. अगर ये Cl देख लो, आप इस जगह का Cl को देख लो. आई टेल यू व्हाई आई हैव डन दिस. अगर आप इसके संग SOCl2 दोगे, SOCl2 दिया आपको, आई होप याद होगा, ये डार्जन्स मेथड था. डार्जन्स मेथड है ये. तो आपको याद होगा कि भैया जहाँ OH है इसमें, जहाँ OH है वहाँ पे Cl जोड़ना है. तो भैया देखो, आपका क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट आपने अब पूरा कर दिया, राइट? तो आपने आप अपने क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा कर दिया. अगर आप वैसे नहीं करते तो यू वुडंट हैव लाइक गिवन द द नीड ऑफ द क्वेश्चन. तो वट एवर बीट हमारा, अगर मान लो अगर आपको E देना है तो हमारा E ये हो गया H3O पॉजिटिव इज़ आवर E. H3O positive is our E over here, and again D is our, I guess this was our D, and D भी हो गया भैया, and हो गया सब कुछ आई guess. हाँ, तो this is what our question was. तो if you want a summary you can go ahead and look with everything. I will give you this question. This is the question. स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक चीज़ को करके दिखाया. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे. आई होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. पॉज करके वीडियो में नोट्स बनाते रहिएगा, एंड वंस द नोट्स आर कंप्लीट यू ट्राई टू हैव अ रिविजन. देखो, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, ऑर्गेनिक पढ़ने समय सब समझ में आता है, बट द मोमेंट यू लीव दैट फॉर वन डे everything will be wiped off. So it's better कि मैं जब पढ़ा दूँ, after you're done taking the notes, try to revise those notes once again, because I try to do ample number of questions just to make sure that you understand whatever I have done, but I also need your commitment, right?
So let's again do one more question, because again as I tell you, क्वेश्चन जितना करेंगे उतना कॉन्फिडेंस मिलने वाला. तो एक क्वेश्चन किया जाए. ओके सॉरी. और इसको ना, इसको DJS में डालना. ये मेरा अपना स्पेशल्स है तो ऑब्वियसली जो भी. DJS, what is DJS? If you want to understand, Dipanshu Jha special. Okay, whatever. That was lame, but hardly matters. HBr के संग रिएक्शन कराया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड. अब आ गया एक नया चीज़ परऑक्साइड. ये जिसने क्लास 11 ठीक से पढ़ा है उसको पता होगा कि व्हाट परऑक्साइड डज. परऑक्साइड के आते ही पता चलता है हमें एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है. व्हाट इज़ दैट एंटी मार्कोनिकोव? I'll tell you in the best possible way, simplest possible way. इसको हमने रिएक्ट कराया भैया H2Ni के संग. Then we get a product over here which is called A. Okay, we get a product A. Then we try to react this product with sodium iodide and triacetone. I hope if you remember what I told you a bit back, आपने लिख लिया होगा इस रिएक्शन का नेम अभी तक, या फिर नहीं भी लिखा होगा तो आई होप कि आपको आंसर लाइक या फिर नेम जो है आपके मुंह पे आ चुका होगा. इट्स बेटर कि आ गए. नहीं भी आए तो ट्राई टू लाइक गो बैक एंड रिमेंबर व्हाट द नेम वाज, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट इन ऑल द पॉसिबल वेज आई कुड हैव. ओके, एनफ ऑफ मी स्पीकिंग. लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन राइट नाउ. ओके, यहाँ से हमें मिला C के बाद हमें मिलेगा D, एंड देन वी गेट अ कंपाउंड म्यू के संग रिएक्शन कराया हमने, हमें मिलेगा एक कंपाउंड E. तो ट्राई टू सॉल्व दिस. आई गिव यू 30 seconds. I hope you have tried this question. So let's try to solve this again. तो हमारा कंपाउंड था भैया कुछ, अरे this was the compound. We have tried to react with HBr peroxide. अब इसको देखते ही आपको याद आएगा कि भैया यहाँ होता है एंटी मार्कोनिकोव. व्हाट इज़ एंटी मार्कोनिकोव? देखो, नॉर्मली जब HBr का हमने या फिर HCl या फिर HX का रिएक्शन सीखा था तो हमने देखा था कि यू हैव टू मेक अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन. यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो आप रूल्स यूज़ करके कार्बोकैटायन बनाओगे, अगर यूजुअली आपने विदाउट उसके किया होता, विदाउट पेरोक्साइड किया होता, तो आपने कुछ ऐसा बनाया होता, इस तरफ पॉजिटिव एंड इस तरफ नेगेटिव. आपने ऐसा कुछ बनाया होता. आई होप ऐसा ही बनाया हो. ना भी बनाया हो तो इट्स ओके. इट टेक्स टाइम ऑब्वियसली. 11 गया है, इट विल टेक टाइम. ओके, बट अगर इसका उल्टा कुछ बनाते तो इट वुड हैव लुक लाइक दिस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच
इसका जस्ट उल्टा बनाना था ना, तो उल्टा बनाता तो दिस वॉज हैविंग लेस स्टेबिलिटी, राइट। अगर नॉर्मल वे में चले तो दिस वॉज हैविंग लो स्टेबिलिटी ना, बट HBr पेरोक्साइड में ना स्टेबिलिटी को हम लोग नहीं देखते। HBr पेरोक्साइड इज़ यूज्ड फॉर दिस स्पेसिफिक रीज़न कि हमको बनाना ही वैसा टाइप का कंपाउंड है, बिकॉज वी हमारा रिक्वायरमेंट देखो, हमारा रिक्वायरमेंट इज़ ऑलवेज चेंजिंग एंड ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड ना। हमें कभी कुछ एक सर्टेन चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, कभी एक सर्टेन दूसरी चीज़ की, तो वी नीड अ प्रोडक्ट विच वॉज नॉट मच स्टेबल यूजुअली, बट वी नीडेड दैट। तो यहाँ पे वही होना है। तो अगर आपको पता चल चुका है अभी तक कि क्या बनाना है, तो आपने बना दिया होगा। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव तो H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव आने वाला है, Br यहाँ एंड H यहाँ पे। तो दिस विल गिव मी सम वॉट ऑफ अ कंपाउंड लाइक दिस. I hope you have made this. So this is our compound A. Moving on with this, we react this with sodium iodide and dry acetone. तो I hope इसको देखते ही आपके मन में लड्डू फूटा होगा, which was called Finkelstein reaction. Finkelstein reaction. I hope ये आपको दिमाग में आया होगा, Finkelstein reaction. तो वट एवर बीट, फिंकलस्टाइन रिएक्शन आपको पता चल चुका है कि अब भैया यहाँ से आयोडीन को पकड़ के हटाना है आपको। इस आयोडीन को पकड़ के हटाइए, रिप्लेस इट विथ Br एंड यू गेट दिस कंपाउंड विच यू नीड। अरे यू नीडेड अ कंपाउंड आयोडीन के संग, यू गॉट दैट कंपाउंड आयोडीन के संग। नाउ A अगेन रिएक्टेड विथ अ सर्टेन थिंग विच वॉज Hg2F2. आई होप अगेन आपके मन में लड्डू फूटा होगा, आई होप फूटा होगा, नहीं भी फूटा तो इट्स अगेन फाइन, हो जाएगा। इसका नाम था स्वार्ट्ज रिएक्शन, आई होप यू रिमेंबर दैट। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन देख के आपको कुछ याद आ चुका होगा अभी तक कि अगेन Br को पलटिए, फ्लोरीन से रिमूव करके फ्लोरीन को लगा दीजिए वहाँ पे। अच्छा, फ्लोरीन को आपने लगाया, यू गेट दैट प्रोडक्ट एज वेल। अगर आपका ये प्रोडक्ट B था और ये C था आपका प्रोडक्ट, राइट। अगेन A से आपको प्रोडक्ट D बनाना था, राइट। तो A से प्रोडक्ट D बनाया जाए। D हमने क्या लिया था भैया, H2, Ni। H2Ni. What is this H2Ni going to give? It will make this double bond disappear and will give me an alkane. हमारे पास यहाँ पे alkene था, it will give me an alkane. Free radical ही होता है, but you do not need that right now. That is not necessary. Again, we have got an alkane over here. Now we are reacting this. This was our D. Okay, now we are reacting this with Br2 and H mu. अगेन यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच यू विल फाइंड इन एवरी बुक एंड एवरी लाइक थिंग विच इज कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में रिएक्शन होता है। व्हाट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला रिएक्शन? दैट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इफ यू आस्क मी। आई विल गिव यू द एग्जांपल। सी व्हाट यू डू ओवर हियर इज यू ट्राई टू मेक दिस कंपाउंड, राइट। फर्स्ट this is the kind of compound you are having right now. You react it with Br2. Br2 ऐसा कुछ होगा, I hope you can understand. Now this bond in between of Br will try to break open. This will break open like this, giving you two compounds. What is this type of breaking? This is a homoleptic bond cleavage. What is homoleptic bond cleavage? Since both the Brs have the same electronegativity, since both the Brs have same electronegativity, neither of the Br will try to catch hold of one another's electron and become a cation or anion. That is the concept over here. दोनों का equal power है electronegativity का, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर में से अलग लेके हट जाएंगे, विच विल गिव मी Br का फ्री रेडिकल एंड Br का फ्री रेडिकल। अगेन भैया
सेम चीज़ यहाँ भी होना है, सेम चीज़ यहाँ भी होगा। बट अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा कार्बन पे अटैक होगा, आप ऑब्वियसली ये वाला बोलोगे। क्यों भैया? क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रहा है, तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन ही होना पड़ेगा। एंड फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में स्टेबिलिटी अगेन इज़ जस्ट लाइक फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी इज़ जस्ट लाइक कार्बोकैटायन, थोड़ा स्पेलिंग पार्डन करना, आई डोंट वांट टू राइट दैट अगेन, इज जस्ट लाइक कार्बोकैटायन विच इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये कार्बन विल बी प्रेफर्ड बिकॉज दिस इज 3 डिग्री कार्बन। तो अब देखो भैया कैसा कुछ होगा, मैं अगर आपको बताऊँ अच्छे से, तो ऐसा कुछ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, आई मीन सॉरी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। यहाँ से H अलग हो चुका होगा, यहाँ पे एक Br आ चुका होगा ऑलरेडी, और एक Br यहाँ पे है प्रेजेंट ऑलरेडी। ये Br इसके संग बॉन्ड बनाना चाहेगा, ये Br इसके संग बॉन्ड बनाना चाहेगा। Thus it will give me 2 compounds which are what I needed। एक कंपाउंड ऐसा रहेगा मेरे पास Br, और एक कंपाउंड मेरे पास रहेगा HBr। ऐसा टाइप का कंपाउंड है मेरे पास, ये 2 कंपाउंड्स मुझे मिलेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट था E। मुझे ये वाले प्रोडक्ट की ज़रूरत है, HBr मुझे नहीं भी आप दोगे तो चलेगा। नाउ आई होप इतना सारा आपको रिएक्शन अभी तक समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो ट्राई गोइंग बैक एंड फोर्थ। जितना बार देखोगे, जितना बार ट्राई करोगे, द मोर टाइम्स यू पुट प्रेशर ऑन योर ब्रेन, द बेटर इट विल वर्क। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमें सीखना है दैट इज़ लुकास टेस्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। पूछते हैं लोग, आई डोंट नो वाई, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज़ंट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ बीइंग आस्क्ड, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। आगे जो भी, तो लुकास रिएजेंट होता क्या है? लुकास टेस्ट से पहले लुकास रिएजेंट हमें जानना ज़रूरी है। लुकास रिएजेंट होता क्या? लुकास रिएजेंट इज़ कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये 2 चीज़ दे के हम लुकास टेस्ट करते हैं। व्हाट इज़ लुकास टेस्ट भैया? सीधे सीधे बात बताए ना, तो ये हमारा होता है टेस्ट फॉर अल्कोहल के लिए टेस्ट होता है। इसमें हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, 3 डिग्री है या 2 डिग्री है या 1 डिग्री अल्कोहल है। अगेन 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री अगर किसी को नहीं पता है, आई विल गिव यू द एग्जांपल्स, नो नीड टू वरी फॉर दैट। 3 डिग्री अल्कोहल का अगर आप मेरे से कोई एग्जांपल पूछे, तो 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल अच्छा से देना है मुझे, तो ऐसा कुछ एग्जांपल दे दूंगा मैं। जिस कार्बन से OH जुड़ा हो, उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है, दिस इज़ अ 3 डिग्री वाला कार्बन। अगेन अगर कोई 2 डिग्री पूछे मुझसे, तो आई विल गिव यू दिस एग्जांपल। देखो इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े, 1 और 2। अच्छा, अगर मुझसे कोई डायरेक्ट पूछे कि आप 1 डिग्री का एग्जांपल दो, तो ये रहा, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े, 1 ऑब्वियसली, तो दिस इज़ 2 डिग्री एंड दिस इज़ 1 डिग्री। अब भैया यहाँ पे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री तो आपने बता दिया। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अगर वापस से बताऊँ, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा, उस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कितने कार्बन है, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। इसमें देखो आप, इससे जुड़ा था 1 और 2, इसमें देखो तो आप डायरेक्टली अटैच विथ 1 कार्बन। डायरेक्ट अटैचमेंट होना चाहिए, एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ द लॉजिक एंड व्हाट डू वी नीड? अब देखो मैं बताता हूँ आपको उसके लिए। इसमें एक लॉजिक है भैया, अगर आप ROH को रिएक्ट कराते हो लुकास रिएजेंट के संग, तो आपको मिलना है RCl, हमेशा मिलेगा RCl। तो इन केस ऑफ, अब देखो आपको याद रखना होगा, इन केस ऑफ 3 डिग्री टर्बिडिटी, अब ये टर्म क्या है भैया? टर्बिडिटी, आई विल टेल यू एवरीथिंग, डोंट वरी। टर्बिडिटी इज अचीव्ड इन सेकेंड्स। व्हाट इज़ दिस टर्बिडिटी? अरे कॉमन सेंस आप सोच के देखो, एक रिएक्शन होगा तो उफनने लगते हैं चीज़ें, लाइक उफनने का मतलब कि कितना जल्दी रिएक्ट होता है, कितना जल्दी कुछ भी फॉर्मेशन होता है, राइट? टर्बिडिटी वैसा ही है, टर्बिडिटी मतलब झाग टाइप का फॉर्मेशन हो जाएगा, इट विल बी सो फास्ट। अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल बताओ ना, तो आपने कभी नॉर्मली नॉर्मल शेक करके एक अगर स्प्राइट का बॉटल खोला हो, या फिर कोई भी इन जनरल कोल्ड ड्रिंक का खोला हो, तो हल्का फुल्का जो झाग उठता है, दैट इज़ लाइक टर्बिडिटी, ठीक है? 3 डिग्री के केस में भैया विद इन सेकेंड्स टर्बिडिटी आएगा।
2 डिग्री के केस में भैया इट विल टेक मिनट्स, इट कैन टेक अप टू फ्यू मिनट्स, ठीक है। टर्बिडिटी इन मिनट्स, हमें कुछ मिनट तक लग जाता है टर्बिडिटी होने में। बट इन केस ऑफ 1 डिग्री ना, 1 डिग्री आप दो चीज़ बोल सकते हो, नो टर्बिडिटी और टर्बिडिटी इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, टर्बिडिटी इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, हमें काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है टर्बिडिटी अचीव करने में। तो हमें एक लंबा वक्त लग जाता है टर्बिडिटी अचीव करने में, तो दैट इज़ व्हाट इट वाज। तो अब यही है सिंपल टेस्ट। अगर आपको एक सैम्पल दे दे, इफ़ यू हैव बीन गिवन अ सैम्पल और आपको लूकास रिएजेंट दे दे, तो यू विल मिक्स देम। अब आपको कितना जल्दी झाग का फॉर्मेशन दिखता है उससे आप जज कर लोगे कि कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री। अगर 1 डिग्री देगा तो इट सिंपली वोंट रिएक्ट, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, यू डू नॉट वांट दैट। 2 डिग्री रहेगा बहुत जल्दी, लाइक मिनट्स में हो जाएगा, 3 4 5 2 1 मिनट में भी हो सकता है, लाइक ऐसा। अगर 3 डिग्री रहना विदिन 10 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स ही रिएक्शन शुरू हो जाएगा, यही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो इन केस एक अगर दिस इज़ नीट जेई लेवल के लिए नॉलेज ज़रूरत पड़ता है। इन केस ऑफ रेजोनेंस stabilized, in case of resonance stabilized carbocation, in case of resonance stabilized carbocations, whether it be 1 degree or 2 डिग्री, टर्बिडिटी ना सेकेंड्स में अचीव हो जाएगा। टर्बिडिटी इन सेकेंड्स में अचीव हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लाइक हेल्प करेगा आपको। क्योंकि रेजोनेंस, सीधा सा बात अगर मैं बताऊँ ना, तो रेजोनेंस इज़ समथिंग दैट विल हेल्प इन अचीविंग स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी कैसे भी अचीव हो रहा है ना किसी को, तो यू विल ट्राई टू डू दैट। अगर मैं आपको आज ही बोलूँ कि आपको 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, तो आपको वो एक तरीके से स्टेबिलिटी मिल गया ना, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल गया। यू विल ट्राई टू डू एनीथिंग। अगर मैं आपको बोलूँ कि आज मेरे को लाइक 200 किलोमीटर चल के दिखा, मेरे को लाइक 200 किलोमीटर जिस दिन चल दोगे मैं तुमको 10 करोड़ रुपए दूंगा, तो यू विल ट्राई टू वॉक 200 किलोमीटर्स एज फास्ट एज पॉसिबल एंड एज सून एज पॉसिबल। आप 1 महीने में चल के आ जाओगे, जो भी वॉट एवर XYZ। दिस वॉज एन टोटली लाइक नॉनसेंस एग्जाम्पल, बट वॉट एवर इट वॉज। अगर मैं आपको बोलूँ आपको करेला पसंद नहीं है, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, आप करेला खा लोगे, एनी हाउ 200 रुपये के लिए खा लोगे करेला। तो दैट इज़ वॉट इट इज़। अगर आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, यू कैन डू एनीथिंग फॉर दैट। तो ये है वो लाइक थिंग। तो यहाँ तक आई विल कंक्लूड दिस वीडियो। तो लूकास टेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। लूकास टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. This is something which is important because teachers like to ask this for some reason and I cannot miss that. So Lucas test हो गया. I have given you Finkelstein reaction, I have given you Schwartz reaction. I hope you will try to remember these things and move ahead with the Sandmeyer reaction is very very important. I'll tell you this again, Sandmeyer reaction is very very important. Again there is one more type of reaction which is called Gattermann reaction. I'll give you that later on, don't worry about that. I'll give you about that, I'll tell you all the things about that. But currently जितना मैंने आपको बताया है वो आप करो. Sandmeyer reaction has been given, Gattermann reaction will be given in the next video. So until then I hope you will keep studying and keep moving ahead with your topics. So thank you again and I hope you like the video. अगर like अच्छा लगा, पसंद आया तो you can like this video, एंड नहीं भी पसंद आया तो क्या ही दिक्कत है, लाइक देके चले जाओ, एक फोकट का ही तो है, क्या जाता है आपका, पढ़ाई तो कर ही लिया ऐसे भी. चलो बाय बाय.